कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और भाई थारा धर्मे आज बहुत कुछ लेकर आया है और चर्चा का विषय बहुत बढ़िया है। एक तो हम जो बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ साथियों आज नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे टमाटर बैंगन व मिर्च की देखभाल के बारे में बात करेंगे। और भाई मनोरंजन भी है, कुछ बढ़िया बातें और भी होगी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है। लेकिन कार्यक्रम भाई शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक जानकारी ज़रूर आपको एक संदेश के माध्यम से दे देते हैं। लेकिन उससे पहले आज का कृषि प्रश्न भी आपको बता देते हैं कि आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दलहन एवं तिलहन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? दक्षिण क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है? ये इन मतलब साथियों आपको बताना है। तो प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताएंगे 6:50 पर। और प्रश्न एक बार फिर से हम दोबारा बता देते हैं, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दलहन एवं तिलहन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? इसका जो आप हमारे को उत्तर 9466021336 पर ज़रूर दीजिए, यानी 94 660 21 336 पर। और भाई जो इसका उत्तर है आप केवल हमारे को एक एसएमएस के माध्यम से भेजिए और वो ही स्वीकार किया जाएगा। तो इसका उत्तर ज़रूर जल्दी से बताएंगे। लेकिन पहले एक संदेश सुन लेते हैं और संदेश के बाद आप चर्चा न आगे बढ़ाओगे कार्यक्रम किसान वाणी में। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Sri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is ENAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become
renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्। तो साथियों, ये तो आपने संदेश सुना और संदेश के बाद अब बात ज़रूर चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। और आज जो चर्चा लेकर आए साथियों, इसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण जानकारी इसमें है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत किसानों का देश है और भाई इसमें तो देखो ज़रूरी है कि योजनाएं बढ़िया हो। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसने हम जो भाई PMFBY भी बोल देते हैं, इसका भाई अनावरण किया गया था। और यह जो योजना से इसमें उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए भाई ऋण ले हुआ है, यानी भाई कर्जा उठा लेते हैं। और ख़राब मौसम तक भाई उनकी रक्षा भी या जो करती है, क्योंकि देखो कर्जे में ले लेते हैं और भाई ख़राब मौसम में फसल ख़राब हो जावे तो भाई देखियो आर्थिक तौर पर तो आदमी कती मरी जाता है। तो उस तक बचाने के लिए भाई यह योजना बहुत बढ़िया है, क्योंकि बीमा जो दावे के निपटान की जो प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाने का भाई निर्णय लिया गया है, ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और यह जो योजना से या भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जा रही है और एसोसिएशन में के निपटान की प्रक्रिया बनाने का फैसला भी किया गया। और इस योजना का भाई प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसमें किया जा रहा है। और साथियों देखो, इस योजना का जब उद्देश्य की जब बात करते भाई क्यों यह योजना बनाई गई है, देखो जो प्राकृतिक आपदाएं है जिस तरह कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित जो फसल में किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, इसका जो उद्देश्य है। इसी तरह भाई कृषि में किसानों की जो सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भाई उनकी आय को यह स्थायित्व देती है और किसानों को कृषि में नवाचार या भाई नई नई चीज़ और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए भी यह जो योजना से प्रोत्साहित करती है और कृषि क्षेत्र में जो ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित भी यह करती है, जो इसका उद्देश्य है। और साथियों देखो योजना बहुत बढ़िया है और हमने ज़रूर इसमें करवानी चाहिए। और इसका जो देखो किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए इसमें 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। और वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के मामले में भाई प्रीमियम केवल 5% होगा और किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम से हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की भाई प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। और इसी तरह साथियों इससे पहले प्रीमियम पर दर कैपिंग का जो प्रावधान था, जिस तक किसानों को कम लाख दावे का भुगतान होता था, अब इसे हटा दिया गया और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा इसमें मिलेगा। तो साथियों योजना बहुत बढ़िया है और अधिसूचित क्षेत्र में भाई अधिसूचित फसल उगाने वाले जो पट्टेदार है या फिर जोतदार जो किसान से उसमें सभी सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र से। और भाई गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित के भूमि जो रिकॉर्ड अधिकतर
आरओआर है तो भूमि कब्जा प्रमाण पत्र, एलपीसी आदि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना इसमें ज़रूरी सा है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुमित जो अधिसूचित लागू अनुबंध है, समझौते, उसका विवरण, इसमें अन्य संबंधित दस्तावेज भी इसमें ज़रूरी है। तो साथियों जो कागजात लगा इस पर पोर्टल पर जाकर आप इसको इसमें ले सकते हो लाभ। और भाई इसमें मुख्य बहुत जो फ़ायदा साथियों वो आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाना है। और कई बार देखो जो मौसम बेमौसमी जो हो जाता है, बरसात हो जाती है, आंधी तूफान है, या फिर सूखा पड़ जाता है, या फिर भाई ज़्यादा जिस तरह गर्मी से भी फसल ख़राब हो जाती है, तो उसे कवरेज के लिए साथियों ये बहुत ज़रूरी है। और फसल बीमा ऐप भाई इसमें शुरू किया गया है, जो फसल बीमा कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग कि भाई इसकी वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह भाई आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की रीढ़ की हड्डी है और इस तरह हमने अपनी मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, पूरा भाई जोर लगा रही है ताकि हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो और आर्थिक तौर पर वो मजबूत रहे और फसल जो हम उगाते हैं उसमें हमारी मजबूती बने ताकि किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो साथियों या तो बात हमने करी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और अब थोड़ी सी बात कर लेते साथियों कल के कृषि कार्यक्रम की। और साथियों जो कल रविवार है और कार्यक्रम हम लेकर आए थारी चिट्ठी हमारे गीत, और सोमवार को जो कार्यक्रम किसान वाणी हम प्रस्तुत करेंगे उसमें साथियों प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात करेंगे। और आज की नसीहत में हम जो सोमवार को बात करेंगे इसमें किसानों का हितैषी जीवाणु खाद का उपयोग और महत्व के बारे में, और थोड़ी सी मोटे अनाज के बारे में भी हम ज़रूर जानकारी देंगे। और साथियों अब दूसरी भी जो जानकारी थोड़ी मौसम की भी दे देते हैं, क्योंकि भाई देखो मौसम जिस प्रकार से इसमें जो उतार चढ़ाव हो रहा भाई, बेमौसमी जो बारिश हो रही है, और उसमें तो मौसम का पूर्वानुमान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों मौसम के अनुसार ही हम अपना कदम बढ़ाते हैं। तो सुनते हैं ये मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों जिले का आज का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 94 और 51% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 9 अगस्त तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने, अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाही रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों 6 अगस्त को अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, और उसके बाद कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों जैसे कि बारिश होने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण आपसे निवेदन है अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। धन्यवाद। तो साथियों ये तय बातचीत हमने डॉक्टर ममता से करी कि मौसम क्या सूचना दे रहा है। और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी भी ज़रूर देते हैं साथियों। एक PIB ऐप है और इसको आप डाउनलोड कीजिए और कृषि से संबंधित सभी जानकारी आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। बाज़ार भाव ये क्या कृषि में चल रहा है, क्या इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी जानकारी PIB ऐप आप डाउनलोड कीजिए और घर बैठे सारी जानकारी लीजिए। इसी तरह भाई एक महत्वपूर्ण जानकारी और से या भाई किसान कॉल सेंटर है, जिसमें आप 1551 पर फ़ोन मिलाकर सारी जानकारी आप इसमें ले सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण नंबर किसान कॉल सेंटर का यानी 1551। और साथियों इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद भाई घनी देर होगी, मनोरंजन भी ज़रूर होना चाहिए। और मनोरंजन के बाद हम भाई जो नई उमंग
नई फसल नई उमंग में बात करेंगे टमाटर, बैंगन व मिर्च की देखभाल की। और लेकिन एक बारी प्रश्न भी ज़रूर बता देते हैं। आज का जो कृषि प्रश्न था भाई साथियों, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दलहन एवं तिलहन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? और इसका उत्तर आप 94 660 21 336 पर SMS के माध्यम से दीजिए। और भाई इस लोकगीत के बाद हम इस रागनी के बाद इसका उत्तर भी बताएंगे और जिन साथियों ने जवाब दिया उनके नाम भी बाज कर ज़रूर हम बताओगे कार्यक्रम किसान मंडी। तो सुनते हैं ये रागनी। तो ये प्रोग्राम मैना कैसेट कंपनी की ओर से पेश करते हैं, गायक हैं राजेंद्र सिंह खरकिया। तो बात कहां से, ओ मेहर सिंह 15 दिन की छुट्टी आया था और जब रंग रोटी काट कर जान लग गया तो अपनी गोरी को क्या कहने लग गया बता। ए रे परदेसान दासू गोरी लोग हंसइए मत न्या मेरे खानदान की इज्जत कर तू बटा लाइए मत न्या कर दे राम कहानी कामदेव के बस में हो गए कर दे राम कहानी ये सब जने जोगी शानी से तो सब जने जोगी शानी से तू गलती कहिए मत न्या खानदान की इज्जत करो रख लिए हाथा में मेरे खानदान की इज्जत रख लिए हाथा में ये गैर आदमी की बात में गैर आदमी की बात में गोरी बिल्कुल जाइए मत ना खानदान की इज्जत करो बचा लाइए मत ना
देवरी गणा लाडला उन बेटे कैसा जाने छोटा देवरी गणा लाडला बेटे कैसा जाने येरे कर बखतू करा बेराने कर बखतू करा बेराने गोरी बिल्कुल चाहिए मत ना खानदान की इज्जत करो मटा लइए मत न्या पिता की सेवा करिए रह के एक बात में मात पिता की सेवा करिए रह के एक बात में तेरा घर की खास बात न गोरी घर की खास बात न गोरी तो बार बताइए मत ना खानदान की इज्जत करो बट्टा लइए मत न्या जैसा मैं दासू गोरी लोग सही मत ना खानदान की इज्जत करो बट्टा लइए खानदान की इज्जत करो बट्टा लइए तो साथियों ये तो आपने रागनी सुनी मेर सिंह की हिट रागनियों में से राजेंद्र खरकिया और साथियों द्वारा ये रागनी थी। और किस्सा भी उस समय का जब भाई कवि जो मेर सिंह है फौज की तरफ जब जाते हैं तो अपनी धर्मपत्नी को समझाते कि किस प्रकार से रहना है। और भाई मेर सिंह बरौना सोनीपत के निवासी थे। और अब बात नई फसल नई उमंग की ज़रूर हम कर लेते हैं, और लेकिन उससे पहले जो हमने प्रश्न ज़रूर पूछा था उसका भी उत्तर ज़रूर बता देते हैं। और प्रश्न था आज का कृषि प्रश्न, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दलहन एवं तिलहन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। तो भाइयों इसमें दक्षिण क्षेत्र है जो दलहन एवं तिलहन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। और इसका जो उत्तर भाई हिसार से हमारे पास संदीप कुमार ने इसका सही उत्तर दिया है। और अब बात ज़रूर अन्य कर लेते हैं नई फसल नई उमंग की, क्योंकि खेती भी सारी ज़रूरी है और उमंग तो ज़रूर इसमें रहनी चाहिए। और साथियों जो टमाटर की जहाँ तक बात है, अगस्त में रोपी गई जो पौध की जो देखभाल ज़रूर करें। नाइट्रोजन खाद की पहली रोपाई के लगभग जो 4-5 सप्ताह इसमें डालें। जो जिस प्रकार से अब अगस्त का महीना चल रहा है तो इसमें या कुछ दिन पहले जो हमने लगाई उसका देखभाल ज़रूर करें। और 1 एकड़ खेत में लगभग 14 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 55 किलोग्राम किसान खाद देकर सिंचाई करें। नाइट्रोजन खाद की दूसरी मात्रा फसल में फूल आने की अवस्था में ज़रूर देनी चाहिए। इसी तरह साथियों अगर जो फल छेदक सुंडी का प्रकोप होने पर ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर देवे और 500 ग्राम कार्बेरिल यानी सेविन या फिर हेक्साविन या फिर कार्बेनिंग 50 घुलनशील पाउडर को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर इसका छिड़काव ज़रूर करें। और
इसी तरह जो साथियों बैंगन की बात करें तो खड़ी फसल में नाइट्रोजन की खाद की दूसरी मात्रा यानी 54 किलोग्राम किसान खाद प्रति एकड़ देकर सिंचाई करें और हानिकारक कीटों से बचाव के लिए पिछले जो हम कीटनाशक दवाई है उसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और इसी तरह जो मिर्च की बात करें तो नाइट्रोजन खाद की दूसरी मात्रा यानी 32 किलोग्राम किसान खाद प्रति एकड़ देकर सिंचाई करें और फसल को हानिकारक कीटों व बीमारियों से बचाने के लिए इसमें जो दवाई को भी इस्तेमाल करें और तारीख ज़रूर देखें और फल फूल गिरने से बचाव के लिए फेलोनोफिक्स या वर्धन नामक दवा के घोल का छिड़काव इसमें ज़रूर करना चाहिए। तो साथियों ये तो बात हमने नई फसल नई उमंग में बता दी। इसी तरह साथियों हम जो प्राकृतिक खेती की भी ज़रूर कहते कि प्राकृतिक खेती हमने ज़रूर करनी चाहिए और किस तरह शुरू करें। देखो छोटा सा किसान जो खेती पर ही पूरी तरह निर्भर है, एकदम पूरी तरह से कुदरती खेती नहीं अपना सकता, लेकिन थोड़े से हिस्से को हम ज़रूर करें, एक छोटी सी विज्ञता हम शुरू करें और 2-3 साल बाद जब आय बढ़ने लगती तो उसमें पूरी में हम वो कर लेते हैं। तो साथियों प्राकृतिक खेती हमने ज़रूर करनी चाहिए, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी चाहिए इसमें, और इसके लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग बंद करना चाहिए। जो मिट्टी से लिया गया उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वापस मिट्टी को मिलना चाहिए और जैव विविधता बढ़ानी है और कई फसलों को मिलाकर एक समय पर एक खेत में हमने बोना चाहिए। तो साथियों ये तो हमने प्राकृतिक खेती के प्रति बताया और ज़रूर हमने प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, सारी चीज़ हमने इसमें अपनानी चाहिए और कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम जो जिस प्रकार से हमारे बड़े बुज़ुर्ग रहते थे हमें उनकी तरह रहना चाहिए। आज जिस प्रकार से देखते तो मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न बेशक है, लेकिन हमारे जो संस्कार है, हमारा जो रहन सहन है, जिस प्रकार से हम खेती करते थे उसको ज़रूर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज़रूरी है वही हमने इसमें ढालना चाहिए। तो साथियों आज के कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और इसी अंक के साथ कल मिलते हैं और अपने साथी धर्मे भाई को दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।